Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting and a very important concept, that is large scale retailers. Students, this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of retail trade. Okay? So student, my previous video was on the concept of types of retailers, and in that video I told you the concept of itinerant retailer and fixed shop small retailers. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट. In this particular video I will teach you large scale retailers. So students, let's see who are large scale retailers. So basically student, these retailers are those who store single type of goods or a variety of goods. So basically student, यहाँ पे दो चीज़ें कही गई हैं, that ये लार्ज स्केल रिटेलर्स बेसिकली वो रिटेलर्स होते हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ गुड्स में डील करते हैं, या ये वो रिटेलर्स होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करते हैं. यहाँ पे दो चीज़ें कही गई हैं. स्टूडेंट, सिंगल टाइप ऑफ गुड्स का मतलब है दैट दीज रिटेलर्स आर बेसिकली कैरिंग लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विद देम, और यू कैन से दे आर सेलिंग single line of product to their customers. For example student, Tanishq store, basically they are dealing in jewelries only. They are selling gold and diamond jewelries to their consumers. Okay. Second thing I told that these particular retailers can be selling a variety of goods to their customers also, या ये वो retailers होते हैं जो कि variety of goods अपने consumers को provide करते हैं. For example, they are selling FMCG products to their customers. They are at the same time selling apparels to their customers. At the same time they are selling toiletries to their customers. At the same time they are selling cosmetics to their customers. So ये लार्ज स्केल रिटेलर्स या तो वो होते हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ गुड्स सेल कर रहे हो, या ये वो रिटेलर्स होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ गुड्स कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो. And they made these goods available to a large number of consumers either in a big shop under a single roof or in various shops at the convenience of customers or directly delivered at the place of the customers. So basically student, ये large scale retailers जो हैं वो large number of consumers को serve करते हैं डेली. लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को ये अपने गुड्स जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, या तो किसी बड़ी शॉप में सिंगल रूफ के अंडर, या डिफरेंट वेरियस शॉप्स में ये अपने गुड्स को अवेलेबल कराते हैं, या डायरेक्टली ये कंज्यूमर्स को उनके प्लेस पे भी डिलीवर करते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो आपके गुड्स जो हैं वो डायरेक्टली आपकी प्लेस पे, आपके डोर स्टेप पे वो डिलीवर कराए जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपके अमेज़ॉन हो गया, या आपके फ्लिपकार्ट हो गए, या अगर आप कोई टेली मार्केटिंग का प्रोडक्ट खरीदते हो, होम शॉप 18 हो गया, नापतोल हो गया, तो वो लोग भी आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके प्लेस पे ही डिलीवर करते हैं. ओके. सो स्टूडेंट, दे आर वेरी पॉपुलर ड्यू टू अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड अदर रीजन. सो बेसिकली जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे लार्ज स्केल रिटेलर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. सो स्टूडेंट, दीज traders basically store the smallest possible thing as well as the largest possible thing with them. All the needs of the customers are met at a single shop, and these shops basically enjoy various benefits of centralization, specialization and storage. So student, with this we have different kind of large scale retailers, that is departmental store, chain stores or multiple stores, supermarket, hypermarket, consumer cooperative stores, hire purchase installment traders, shopping malls, mail order houses, automatic vending machines, telemarketing, online shopping. So basically students, there are number of large scale retailers, and the main retailers I have mentioned here. So one by one I will teach you all these large scale retailers. Okay. So in students, in this particular video I will teach you departmental stores. Okay. And rest large scale retailers I will be teaching you in my next video, so you have to be stay tuned. Student, let's see about the first form of large scale retailer, that is departmental store. Okay. So student, a departmental store is a large retail establishment offering a wide variety of products classified into well defined departments. So student, departmental store basically large retail units होते हैं जो कि wide variety of products offer करते हैं consumers को, and this particular departmental store is divided into many parts, or you can say many departments, and every department is specialized in one particular line of product aimed at satisfying every consumer's need under one roof.
और हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो अपने पर्टिकुलर लाइन में स्पेशलाइज होता है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपका अगर डिपार्टमेंटल स्टोर है जो कि सिर्फ क्लोथ्स में डील करता है, देन देयर यू विल फाइंड डिपार्टमेंट्स फॉर एवरीवन. मीन्स आपको वहाँ पे किड्स सेक्शन भी मिलेगा, आपको वहाँ पे मेन सेक्शन भी मिलेगा, विमेन सेक्शन भी मिलेगा, आपको वहाँ पे टीनेजर सेक्शन भी मिलेगा. मीन्स आपको हर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वहाँ पे क्लोथ्स ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे. सो स्टूडेंट, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं वो हर कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं अंडर वन रूफ. एंड द मैनेजमेंट ऑफ ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो इनका मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका मैनेजमेंट जो है वो या तो एक पर्टिकुलर पर्सन करता है या पूरा ऑर्गेनाइजेशन करता है. ओके. So students, there is a definition of departmental store given by James Stevenson that a departmental store is a big store engaged in the retail of wide variety of articles under the same shelf. Okay. So student, I hope आपको departmental store clear हो गया होगा. That basically departmental store is a shop which has many departments in it and where all the things are available and it is managed by some individuals or an organization. Okay. Student, with this we have some examples of departmental store. So student, here are some departmental store which are available in India, such as Pantaloons, Trends, Lifestyle, Marks, Westside, and well student, there are many more departmental stores in India also. So student, let's take the example of Lifestyle. So student, I hope आप सब ने Lifestyle डिपार्टमेंटल स्टोर विजिट किया हो. बेसिकली स्टूडेंट, दिस पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल डिपार्टमेंटल स्टोर डील विद डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स सच एज दे प्रोवाइड अपरेल्स, दे provide footwears, they provide toys, they provide kids wear, they provide furniture, they provide home furnishing products, they even provide personal grooming products such as cosmetics. Means they are dealing in number of products under one roof. Okay, so that they can satisfy their consumers well. With this student, we have some features of departmental stores. So student, first feature of departmental store is large size. So student, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं वो बहुत ही लार्ज साइज़ के होते हैं. इनका स्केल ऑफ ऑपरेशन भी बहुत लार्ज होता है एंड हेंस दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड इन दिस. देयरफॉर दीज स्टोर्स आर फॉर्म्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी विच इज़ अल्टीमेटली मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एंड इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, जनरल मैनेजर हो गए, और हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स इंक्लूड होते हैं. ओके. With this student, we have another feature of departmental store, that is wide choice. So student, as जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि डिपार्टमेंटल स्टोर में वाइड चॉइस आपको अवेलेबल होती है बिकॉज ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको ऑफर करते हैं फ्रॉम लो प्राइस टू वेरी एक्सपेंसिव गुड्स. यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं अंडर सिंगल रूफ, जिससे कि आप अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी गुड्स वहाँ से खरीद सकते हैं. स्टूडेंट, इट इज सेड दैट अ टिपिकल डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड ऑल द आइटम्स फ्रॉम अ पिन टू एन एरोप्लेन. ओके. विद दिस स्टूडेंट, वी हैव अनदर फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, दैट इज डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको गुड्स जो भी ऑफर किए जाते हैं वो वेरियस डिपार्टमेंट्स में क्लासिफाइड होते हैं and every department is specialized in one line of product and operate at the separate unit. So student, अगर आप कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर विजिट कीजिए तो वहाँ पे आपको गुड्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्लासिफाइड होकर मिलते हैं, और हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो अपने प्रोडक्ट में अपनी लाइन में स्पेशलाइज होता है और वो एज अ सेपरेट यूनिट ऑपरेट करता है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको लाइफ स्टाइल का एग्जाम्पल दिया था, अगर आप वहाँ पे जाइए तो आपको अप्रैल्स का अलग डिपार्टमेंट मिलेगा, फुटवेयर्स का अलग डिपार्टमेंट मिलेगा, किड्स का अलग डिपार्टमेंट मिलेगा, और आपको कॉस्मेटिक्स का अलग डिपार्टमेंट मिलेगा. और हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन में स्पेशलाइज होता है. विद दिस स्टूडेंट, वी हैव अनदर फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, दैट इज इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज. सो स्टूडेंट, डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं वो फैसिलिटीज़ और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं अपने कंज्यूमर्स को, जैसे कि दे प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ रेस्टोरेंट, रेस्ट रूम, रिक्रिएशन, पैकिंग, फ्री होम डिलीवरी, पार्किंग एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स,
Beside providing variety of products to the consumers, these particular departmental stores provide variety of facilities and services to their customers also. ये आपको रेस्ट रूम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये आपके लिए गुड्स को रिक्रिएट करते हैं जिससे कि आपकी नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल हो सके ईजिली. ये आपको पैकेजिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपको गुड्स वहाँ से कैरी करने में अपने घर तक कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ये आपको फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं, ये वैले पार्किंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप अपनी परचेजिंग जो है वो ईजिली कर सकें. So student, these departmental stores basically provide various facilities to their customers so that they can purchase goods easily from these stores. सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग. स्टूडेंट, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग बेसिकली एक ऐसा परचेजिंग सिस्टम होता है जिसमें कंपनी के सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो एक कॉमन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन से अपने गुड्स को परचेज करते हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट, इन डिपार्टमेंटल स्टोर ऑल्सो all the purchases are made centrally and directly from the manufacturer. So basically student, departmental store में भी उनके जो भी goods वो consumer को available कराते हैं वो directly purchase किए जाते हैं from the manufacturers, and these particular goods are basically stored in separate warehouses. और इन पर्टिकुलर गुड्स को सेपरेट वेयर हाउसेज में स्टोर कराया जाता है जिससे कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन सारे गुड्स को कंज्यूमर को अवेलेबल कराया जाए इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये डिफरेंट फीचर्स जो हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के क्लियर हुए होंगे. विद दिस स्टूडेंट वी विल मूव ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. ओके, सो स्टूडेंट, फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर इज convenience in buying. So basically student, these departmental stores offer a variety of products into well defined departments under one roof, and hence they are providing you great convenience while shopping. So students, आपके जो departmental store हैं ये number of products आपको देते हैं एक ही छत के नीचे जिससे कि आप बहुत ही हेजल फ्री शॉपिंग कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द एग्जाम्पल ऑफ लाइफ स्टाइल दैट दे आर ऑफरिंग यू अ वाइड वराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग वराइटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन. दे आर offering you footwear, they are offering you apparels, they are offering you cosmetics, they are offering you kids wear, they are offering you toys, they are offering you number of products. और इसमें भी आपके लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. अगर आपको ये apparels प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको किड्स के लिए भी apparels मिल रहे हैं, आपको मेंस के लिए भी मिल रहे हैं, विमेंस के लिए भी मिल रहे हैं. सो मीन्स यू आर गेटिंग ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ, एंड हेंस यू आर doing basically hassle free shopping there. So student, the departmental store basically provide great convenience to all the members in a family in buying almost all goods of their requirement at one place. So basically student, यहाँ पे consumers की requirement जो है वो एक ही छत के नीचे पूरी हो जाती है. A large variety of goods available in all the departments enable customer to save time, and there is no need to run from one place to another to complete their shopping. So students, अगर आपको शॉपिंग करते टाइम एक पर्टिकुलर छत के नीचे एक पर्टिकुलर स्टोर में ही आपकी रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता है, विच अल्टीमेटली सेव्स योर टाइम ऑल्सो. आपको एक ही डिपार्टमेंट में आपको एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर में सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. अगर आप मेन के लिए गए हैं तो आपको मेन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसके क्लोथ्स मिल जाएंगे, उसके आपको और भी जो भी एसेसरीज चाहिए होंगी वो मिल जाएंगी. अगर आप किड्स के लिए जाते हैं तो किड्स के लिए आपको टॉयज़ मिल जाते हैं, किड्स के लिए फुटवेयर्स मिल जाते हैं, किड्स के लिए टॉयज़ मिल जाते हैं. अगर आप होम रिलेटेड चीज़ें खरीदने जाते हैं तो आपको होम फर्निशिंग की भी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. अगर आप विमेंस के लिए जाते हैं तो आपको कॉस्मेटिक्स मिल जाते हैं, आपको और उनकी एसेसरीज मिल जाती हैं, एपरल्स मिल जाते हैं. तो बेसिकली आपकी कंप्लीट शॉपिंग हो जाती है इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द वेरी बिग एडवांटेज ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर दैट दे प्रोवाइड कन्वीनियंस इन बाइंग. ओके, विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर दैट इज अट्रैक्टिव सर्विसेज. सो बेसिकली स्टूडेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं वो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देने के साथ साथ डिफरेंट सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कराते हैं. जैसे कि आपको ये होम डिलीवरी प्रोवाइड कराते हैं गुड्स की, ये टेलीफोन पे भी आपके ऑर्डर्स लेते हैं, रेस्ट रूम्स प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, सलून्स प्रोवाइड करते हैं, चिल्ड्रन गेम सेंटर प्रोवाइड करते हैं, एक्सेट्रा. सो बेसिकली स्टूडेंट, ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो है अट्रैक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये आपके गुड्स की होम डिलीवरी करा देते हैं,
आपके ऑर्डर्स को टेलीफोन पे लेते हैं और उनको आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड कराते हैं। प्लस आप अगर इनके यहाँ कुछ भी परचेज करने आए हैं तो यू कैन यूज़ रेस्टोरेंट्स, यू कैन यूज़ रेस्ट रूम्स, you can use saloons there, and they also provide children game center also, so that you can buy your goods easily without any problem. Okay, so student, with this we have another advantage of departmental store, that is central location. So basically student, these particular departmental stores are centrally located in the heart of the city and hence they cater to large number of customers. So student, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं वो सिटी के सेंट्रल प्लेसेस में लोकेट किए जाते हैं, जिससे कि हर कस्टमर इनके पास ईजिली पहुंच सके गुड्स को खरीदने के लिए. ओके, with this student we have another advantage of departmental store, that is elimination of middlemen. Students, as I already told you that these departmental store basically purchase goods directly from the manufacturers, or you can say producers, and they store the goods in their warehouses so that they can make goods available to the consumers whenever they demand. So student, here you can see that these departmental store directly purchase goods from manufacturer and they sells it to their consumers. So they are eliminating the अनडिज़ायरेबल मिडलमैन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर. यहाँ पे कोई भी मिडलमैन की ज़रूरत ही नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स को डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ले जा करके कंज्यूमर को सेल किया जा रहा है. सो स्टूडेंट, दीज डिपार्टमेंटल स्टोर कंबाइन बोथ द फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग एज वेल एज वेयर हाउसिंग. With this we have another advantages of departmental store, that is economies of large scale operations. So student, departmental stores जो हैं वो large scale पे organize किए जाते हैं, hence they are buying the goods in bulk, therefore they will enjoy the benefit of special discounts also. So student, जब भी आप large scale production करते हैं तो आप economies of scale enjoy करते हैं, because आपका per unit cost जो है product का वो कम हो जाता है. So आपका जब per unit cost कम आता है तो आपको स्पेशल डिस्काउंट्स जो हैं वो मिलते हैं, और कंज्यूमर्स को गुड जो है वो बढ़िया क्वालिटी पे और लोअर प्राइस पे अवेलेबल हो जाता है. सो स्टूडेंट, दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. विद दिस स्टूडेंट वी हैव सम डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, दैट इज हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. सो स्टूडेंट, डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं बेसिकली लार्ज रिटेल आउटलेट्स होते हैं. ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल कराते हैं. इसके साथ साथ वो आपको कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं विद इन द रिटेल आउटलेट, सच एज दे प्रोवाइड यू रेस्ट रूम्स, दे प्रोवाइड यू रेस्टोरेंट्स, दे प्रोवाइड यू सलून्स, दे प्रोवाइड यू अ सेपरेट किड्स गेमिंग जोन. With this they also provide different customer services also, such as home delivery, they provide you valet parking also. So इन सारी चीज़ों के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर को लार्ज बिल्डिंग चाहिए होती है विद एम्पल पार्किंग एट सेंट्रल प्लेस, एंड फॉर दिस दे हैव टू incur heavy expenditure on these things. Moreover, they have to incur heavy expenditure on salaries, maintenance of building, customer services, advertisement, etc. So इन सारी चीज़ों के अलावा भी डिपार्टमेंटल स्टोर को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है सैलरीज़ पे. जो भी वो अपने स्टाफ को सैलरीज प्रोवाइड कर रहे हैं उन पे भी एक्सपेंडिचर उन्हें अच्छा खासा करना पड़ता है. बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए भी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. बाकी और कस्टमर सर्विस के लिए उन्हें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, और अपने प्रोडक्ट्स को, अपने डिपार्टमेंटल स्टोर को प्रमोट करने के लिए उन्हें डिफरेंट एडवर्टीजमेंट करने होते हैं. उस पे भी वो एडवर्टीजमेंट्स के लिए भी वो हैवी एक्सपेंडिचर करते हैं. सो इन नॉर्मल वर्ड्स यू कैन से डैट ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर हैं इनका एस्टेब्लिशमेंट और ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो ये एक लिमिटेशन है डिपार्टमेंटल स्टोर का. With this we have another limitation, that is higher prices. Due to high operating cost, prices of goods in a departmental store are comparatively high. Only rich persons can afford to buy goods at departmental store. So student, as I already told you कि departmental stores का cost of operation बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से departmental store में available goods का prices भी high हो जाता है as compared to different shops, and hence only rich persons can afford to buy goods at departmental store. Everyone cannot buy goods in these departmental store. Only आपके जो rich people होंगे, जो elite class public होगी, वही departmental store से easily goods खरीद सकती है. लोअर इनकम ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो
आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से गुड्स ईजिली परचेज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुड्स जो हैं वो बहुत हाई प्राइजेस के होते हैं। ये एक आपकी लिमिटेशन है डिपार्टमेंटल स्टोर की। विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर इज डिस्टेंस। सो स्टूडेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं वो हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेट होते हैं, सेंट्रली लोकेट होते हैं, जिससे कि इनके पास ज़्यादा पब्लिक पहुँचे, बट इनके पास वही पब्लिक पहुँचती है जो कि सेंट्रली अवेलेबल होती है गुड्स को ख़रीदने के लिए। जो लोग सब अर्बन एरियाज़ में रह रहे होते हैं या सिटी के आउटस्कर्ट्स में रह रहे होते हैं, वो इनके पास ईजिली नहीं पहुंच पाते हैं गुड्स को ख़रीदने के लिए। दे बेसिकली हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच दीज स्टोर्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। ओके, with this we have another limitation of departmental store, that is lack of personal touch. So students, the management of the store find it's very difficult to maintain personal contact with the customers, and the salaried staff may not take interest in securing the satisfaction and goodwill of the customers. So basically student, जो भी स्टोर के मैनेजर्स होते हैं वो पर्सनल कांटेक्ट नहीं रख पाते हैं कंज्यूमर्स के साथ, और हेंस देयर इज़ अ लैक ऑफ पर्सनल टच बिटवीन द ओनर्स और यू कैन से मैनेजर्स ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द कस्टमर्स। ओके, मोर ओवर आपके जो भी सैलरीड पर्सनस होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, वो भी कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने में और गुडविल बनाने में। ओके, सो देयर इज़ a lack of personal touch between the owners or you can say managers of the departmental store and consumers. Okay, with this student we have another limitation of departmental store, that is difficult to establish. Students, it is very difficult to establish departmental stores because the operating cost is very high, and to establish a particular departmental store you require large amount of capital. Moreover, you require a large number of specialized persons to establish a departmental store. So student, एक डिपार्टमेंटल स्टोर को इस्टेब्लिश करने में प्लस उसको रन करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड हेंस इट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. Another limitation of departmental store is high risk. So students, due to central location and large scale operations, risk of loss is very high. Student, इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर्स का लोकेशन जो है वो सेंट्रल होता है, सेंट्रली ये लोग लोकेट होते हैं, इनके ऑपरेशंस भी बहुत ही लार्ज स्केल के होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका रिस्क भी है वो बहुत ज़्यादा होता है. मोर ओवर स्टूडेंट, चेंज इन टेस्ट, फैशन, मार्केट फ्लक्चुएशंस में लीड टू हैवी लॉस. स्टूडेंट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस करते हैं और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है लॉसेस की, बिकॉज ये पर्टिकुलर स्टोर्स जो हैं इसमें अगर कोई भी चेंज होता है फैशन से रिलेटेड, टेस्ट में रिलेटेड या मार्केट फ्लक्चुएशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे इनको हैवी लॉस सफ़र करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर कोई भी चेंज फैशन में होता है तो ये पर्टिकुलर स्टोर्स जो हैं वो अपना ओल्ड फैशन प्रोडक्ट जो है वो जल्द से जल्द क्लियर करते हैं सेल लगा करके, और हैवी डिस्काउंट्स में ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं कंज्यूमर्स को. कंज्यूमर्स के लिए ये बेनिफिट है, बट डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो ओपन किए बैठे हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स को चला रहे हैं, उनके लिए ये हैवी लॉस की बात है. ओके, विद दिस स्टूडेंट वी आर डन विद द डिपार्टमेंटल स्टोर्स. आई होप आपको ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ हो, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. प्लीज़ स्टूडेंट, गो थ्रू योर बुक्स, रीड इट फ्रॉम देयर, एंड इफ़ यू feel any doubt, if you have any doubt, any query regarding this particular concept, please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.